Hello my dear students. This is the third lecture on primary activities. In this video we will discuss about Mediterranean agriculture, horticulture, collective farming, cooperative farming and some other related points. At first, Mediterranean agriculture. Mediterranean agriculture is highly specialized and commercial agricultural system. This type of main activity or this type of agricultural system mainly practiced near the Mediterranean Ocean area, and same type of climatic condition found in other part of the world. Here we can see it is practiced in the countries on either side of Mediterranean Sea in Europe, and in the North Africa from Tunisia to Atlantic coast, southern California, central Chile, southwestern part of South Africa, southern southwestern part of Australia. These are the areas where such type of Mediterranean agricultural practice. And one of the most important characteristics of this agricultural system, that is cultivation of several kind of juicy fruits. For example, cultivation of grapes, which is also known as viticulture. This cultivation of grapes or viticulture supply best quality wines throughout the world. And there are so many more valuable crops such as fruits, vegetables are grown in winter when there is great demand of demand in European and North American markets. This Mediterranean agriculture is highly mechanized and capital intensive agricultural activity, because we know that there are so many modern techniques are used, and fertilizer, pesticides, so many things are used for cultivating such kind of juicy fruits or such kind of crops. And this is why this Mediterranean agricultural system is capital intensive also. Here we can see these are the areas where such type of Mediterranean agriculture practiced. Next, in the here market gardening and horticulture. Why such type of name, market gardening or horticulture? Market gardening is a such type of agricultural system generally developed or generally practiced near the urban center or near the market area, because specialized in cultivation of high value crops such as vegetables, fruits, flowers solely for the urban markets. क्योंकि ये जितना सारा कल्टिवेट कर रहा है, जितना सारा क्रॉप्स वगैरह जो है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, फ्लावर्स जो भी कल्टिवेट कर रहा है, ये जल्दी अगर मार्केट तक नहीं भेजा जाएगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मार्केट गार्डनिंग बोला जाता है, कि मार्केट के लिए उसको बनाया गया. ठीक है, जल्दी अगर उसको मार्केट सेंटर में नहीं भेज पाएंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा. नेक्स्ट, फार्म्स आर स्मॉल एंड आर लोकेटेड वेयर there are good transportation link with the urban center where high income group of consumer is located. अर्बन एरिया में मेनली हम लोग जानते हैं कि जो भी कंज्यूमर होता है ये हाई इनकम उन लोगों का, थोड़ा बहुत अमीर लोग ये होता है. और ये अर्बन एरिया के साथ ये जो मार्केट गार्डनिंग एरिया जो है अर्बन एरिया के साथ वेल कनेक्टेड होना चाहिए. सपोज ये अगर मार्केट सेंटर है तो यहाँ से सपोज यहाँ पर ये जो कल्टिवेटेड एरिया है तो ये वेल कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि जल्दी इसमें क्या भेज सके, ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर ये जल्दी उसमें भेज सके. नहीं तो क्या हो जाएगा, ये सब्ज़ी वगैरह जो है ये ख़राब होने का चांस रहता है. जैसे कि इसमें अगर हम लोग देखेंगे टोमेटो और उसके बाद और भी फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, ये सब कुछ अगर जल्दी नहीं भेज पाएंगे तो ये ख़राब हो जाता है. तो मार्केट ओरिएंटेड ये जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है इसीलिए उसको बोला जाता है मार्केट गार्डनिंग. नेक्स्ट, बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव, बिकॉज जैसे कि ये छोटा सा एक ज़मीन में ये इतना सारा लोग एक साथ काम कर रहा है. ठीक है, इसमें मॉडर्न टेक्निक यूज़ हो रहा है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउस, आर्टिफिशियल हीटिंग एट्सेट्रा दे आर यूजिंग फॉर कल्टिवेटिंग सच काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स. एंड दिस इज़ वाई दिस एग्रीकल्चरल सिस्टम इज़ कैपिटल इंटेंसिव. बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है. Next, the type of agriculture is well developed in densely populated industrial districts of northwest Europe, northeastern United States of America and the Mediterranean region. क्योंकि इसमें जो है हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में इसीलिए होता है क्योंकि इसमें ज़मीन का कमी है, लैंड एरिया जो है लिमिटेड है, लैंड रिसोर्स.
जिसके कारण छोटा सा एक लैंड एरिया से ही बहुत सारे लोगों का डिमांड पूरा करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउस, ये अलग अलग मॉडर्न टेक्निक यूज़ करके ये मार्केट गार्डनिंग किया जाता है। नेक्स्ट, नीदरलैंड स्पेशलाइज्ड इन ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, और ऐसे अगर देखेंगे तो और भी बहुत सारे रीजन है, अलग अलग कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए, फ्लावर्स के लिए ये या कोई फ्रूट्स के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रैक फार्मिंग एंड फैक्ट्री फार्मिंग। ट्रैक फार्मिंग mainly known as mainly we can tell this is the vegetable cultivation, the region where farmers specialize in vegetables only. The farming is known as trap farming because we know that vegetables are ये ऐसा है कि अगर जल्दी उसको मार्केट एरिया तक नहीं भेज पाएंगे तो ये जल्दी ये क्या हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इसके क्या होना चाहिए, जो भी मार्केट, ये सपोज एक कल्टिवेटेड एरिया है, कल्टिवेटेड एरिया, ये मार्केट एरिया है, तो ऑटोमेटिक अगर इसमें वेल कनेक्टेड होगा और इसमें ट्रक वगैरह हमेशा क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है फॉर सेंडिंग सच काइंड ऑफ वेजिटेबल और प्रोडक्शन। एंड दिस इज वाई दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम इज नोन एज ट्रक फार्मिंग। इसमें ट्रक का यूज़ और ट्रक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए उसको बोला जाता है ट्रैक फार्मिंग। जैसे कि इसमें है कि द डिस्टेंस ऑफ ट्रैक फार्म फ्रॉम मार्केट इज गवर्न्ड बाय द डिस्टेंस दैट ए ट्रैक कैन कवर ओवरनाइट इन द नेम ट्रैक फार्मिंग। ये इतना दूर तक हो सकता है ताकि ये सपोज यह सुबह इसमें जो भी प्रोडक्शन ये मिला और शाम तक जितना सारा प्रोडक्शन मिला उसको एक ट्रक जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा एक नाइट लगेगा, ठीक है, एक रात में उसको अर्बन एरिया में भेज सकता है। इतना डिस्टेंस तक ये ट्रक फार्मिंग हो सकता है। तो ऐसे ही जो है ये मेनली ट्रक यूज़ करके किया जाता है, जिसके कारण उसको बोला जाता है ट्रक फार्मिंग। सेम वे हम लोग अगर देखेंगे सेकंड पॉइंट फैक्ट्री फार्मिंग, ये मेनली इंडस्ट्रियल एरिया जो है वेस्टर्न यूरोप का और नॉर्थ अमेरिका, उसमें इस टाइप का वेजिटेबल कल्टिवेशन किया जाता है, जिसके कारण उसको क्या बोला जाता है, फैक्ट्री फार्मिंग ऑल्सो। नेक्स्ट, जैसे कि इसके साथ साथ पोल्ट्री, कैटल रेयरिंग, ये सब अलग अलग जो एक्टिविटीज़ इसमें किया जाता है। और ये सब एक्टिविटीज़ जो है, ये जो वेजिटेबल कल्टिवेशन, उसके साथ पोल्ट्री, कैटल रेयरिंग, ये सब कुछ एक्टिविटीज़ एक साथ कभी कभी किया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए कि दिस रिक्वायर्ड हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फॉर यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स और फॉर सेंडिंग देयर प्रोडक्ट्स टू द मार्केट एरिया। ये जितना सारा काम है सबके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, और इसके कारण इसको बोला जाता है क्या, कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चरल सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग बेस्ड ऑन फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है बेस्ड ऑन फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर टू टाइप्स। नंबर 1 कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड नंबर 2 कलेक्टिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग, ए ग्रुप ऑफ फार्मर्स form a cooperative society by pooling in their resources voluntarily for more efficient and profitable farming. Individual farm remains intact and farming is a matter of cooperative initiatives. कि इसमें बहुत सारा फार्मर जो है एक साथ क्या हो जाता है, ये वॉलंटरीली जुड़ जाते हैं, एक साथ मिल के ये लोग एक ही बड़ा सा लैंड बना के, बड़ा सा एक एरिया बना के, उसमें जितना ज़्यादा एफोर्ट सब मिल के देकर उसमें से ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लिए ये एक्टिविटी करते हैं। तो सब मिल के कोऑपरेट कर ये खेती किया जा रहा है, जिसके कारण इसका नाम है कोऑपरेटिव फार्मिंग। मतलब बहुत सारा फार्मर्स एक साथ कोऑपरेट, एक दूसरे को कोऑपरेट करके ये फार्मिंग हो रहा है। कोऑपरेटिव फार्मिंग और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प फार्मर्स टू procure all important inputs of farming, sell products at the most favorable terms, and help in processing of quality products at cheaper rates. इसमें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कुछ जो है इसमें इस फार्मिंग सिस्टम को मदद करता है, और जितना ज़्यादा हो सके कि चीप रेट में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए कोशिश करता है, ताकि इन लोगों का जो भी प्रोडक्ट्स निकलेगा ये जल्द से जल्द ये सप्लाई भी आसानी से दे पाएगा और इन लोगों का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। कोऑपरेटिव मूवमेंट originated over a century ago and has been successful in many Western European countries like
डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली, ये सब कंट्रीज़ में मेनली बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है ये डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कलेक्टिव फार्मिंग। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। इसमें क्या है कि पूरा सोसाइटी, इसमें पर्सनल रिसोर्स वगैरह और लैंड वगैरह जो है ऐसा कुछ नहीं रहता है। इसमें जो है पूरा रिसोर्स जो है, लैंड रिसोर्स बोलिए और जो भी प्रोडक्शन वगैरह होगा ये पूरा सोसाइटी के नाम से होगा, ठीक है। और इसमें जो है जितना सारा लेबर वगैरह होगा अपना अपना एफिशिएंसी के हिसाब से उन लोगों को काम मिलेगा। जैसे कि ये जो ज़मीन में है, इस ज़मीन में जिसको जो भी काम आता है उस ज़मीन में पूरा सब लोग मिल के काम कर रहा है और यहाँ से प्रोडक्शन निकल रहा है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव एफोर्ट से, ये पूरा सोसाइटी का कलेक्टिव एफोर्ट से ये फार्मिंग किया जा रहा है, जिसके कारण इसका नाम है कलेक्टिव फार्मिंग। Next, collective farming or the model of Kolgos was introduced in erstwhile Soviet Union to improve upon the efficiency of the previous methods of agriculture, और वी कैन टेल प्रीवियस मतलब ये कोऑपरेटिव फार्मिंग, इससे भी ज़्यादा एफिशिएंसी लाने के लिए ये मेथड यूज़ किया गया फॉर सेल्फ सफिशिएंसी। फार्मर यूज टू पुल इन ऑल देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लाइफ स्टॉक, लेबर, ये सब कुछ एक साथ सबका मिला के ये लोग काम करते हैं। हाउएवर they were allowed to retain very small plots to grow crops in order to meet their daily requirements। ये जो है ये लोग मतलब कुछ पर्टिकुलर छोटा सा एक लैंड एरिया को दिया जाता है, खुद का जो है डेली लाइफ का जो सामान वगैरह है। सपोज उसके पास बहुत सारा ज़मीन है, ये भी ज़मीन है, तो इसको किसी एक फैमिली को, ये फार्मर्स का फैमिली है, फार्मर्स फैमिली FF, तो ये फार्मर्स फैमिली को सिर्फ ये ज़मीन को दिया गया और इस फैमिली का ये ज़मीन भी है, लेकिन ये ज़मीन को किसको देना है, पूरा सोसाइटी का नाम से कर देना है। तो पूरा सोसाइटी के नाम से इसमें जो कल्टीवेशन हो रहा है उसका तो एक हिस्सा मिलेगा ही, लेकिन डेली लाइफ को मतलब डेली लाइफ चलाने के लिए ये छोटा सा ज़मीन इस फैमिली का नाम से है। तो ऐसे ही अगर देखेंगे तो बहुत छोटा सा एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड सभी फैमिली को एक एक करके दिया जाता है और बाकी सारा पूरा लैंड जो है पूरा सोसाइटी का नाम से ये कल्टीवेशन किया जाता है। ये है हमारा कलेक्टिव फार्मिंग। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटी दैट इज माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम डेप्थ ऑफ द अर्थ। इट मे बी नियर टू द अर्थ सरफेस और इट मे बी डीप टू द अर्थ सरफेस। मतलब जस्ट ये सपोज ये अर्थ सरफेस अगर है, ये अगर हम लोग अर्थ सरफेस मानेंगे तो इसका जस्ट नीचे इसमें भी मिनरल्स वगैरह हो सकता है और बहुत दूर तक, ये नीचे इतना दूर तक भी हो सकता है। तो जो भी है ये धरती के अंदर से जो मिनरल्स को निकलने का प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस है हमारा माइनिंग। It is referred to the process of taking out minerals from the depth of the earth. The discovery of minerals in the history of human development is reflected in many stages in terms of copper age, bronze age and iron age. ये जो है ये डेवलपमेंट के हिसाब से, ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से ये हुआ। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से ये जो है किस समय में कौन सा ये माइनिंग एक्टिविटी ये हुआ है, उस हिसाब से उसका नाम है। जैसे कि हम लोग नाम सुनते हैं हिस्ट्री में कि कॉपर एज, ब्रोंज एज, उस समय मतलब सपोज ब्रोंज एज, तो उस समय मतलब ये ब्रोंज एक्सट्रैक्शन किया गया था, इस टाइप से ये नाम दिया गया। द यूज ऑफ मिनरल्स इन एंशियंट टाइम्स was largely confined to the making of tools and utensils and weapons. The actual development of mining began with the industrial revolution and its importance in continuously increasing. जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ उसके बाद से ये जो भी मिनरल्स वगैरह है उसका डिमांड बढ़ने लगा और ये माइनिंग प्रोसेस भी धीरे धीरे कंटिन्यूसली ये इंक्रीज होने लगा, ये प्रोसेस भी आगे बढ़ने लगा। नेक्स्ट देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी। व्हाट आर द फैक्टर्स? फॉर एग्जांपल फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी नो दैट सो मेनी coal minerals layer are found in the Himalayas region, लेकिन उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते
क्योंकि इसमें अगर हम लोग कोल को अगर हिमालयन रीजन से अगर निकलने के लिए जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड वगैरह इतना ज़्यादा हो सकता है कि हम लोग हमारा पूरा सिविलाइजेशन जो है बर्बाद भी हो सकता है। इतना ज़रा भूकंप वगैरह जो है ये ज़्यादा होने का चांसेस है। तो ऐसे ये जो है फिजिकल लिमिटेशन भी हो सकता है। द फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड द साइज, ग्रेड एंड द मोड ऑफ ऑकरेंसेस इन द डेप्थ। ये और एक है कि कुछ मिनरल जो है बहुत नीचे तक जाना पड़ता है अर्थ सरफेस से, और कुछ मिनरल्स जस्ट अर्थ सरफेस का नीचे ही मिलता है। तो ये जो है ये डिपेंड करता है कि फिजिकल फैक्टर किस टाइप का है। अगर फिजिकल फैक्टर अच्छा है तो जल्दी हम लोग आसानी से उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर फिजिकल फैक्टर अच्छा नहीं है तो उसको हम लोग आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और एक फैक्टर है कि अवेलेबिलिटी, इसमें जो है अवेलेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे सपोज अगर थोड़ा सा बहुत नीचे तक जाना पड़ रहा है और इसमें थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पर क्या है, मिनरल्स है, तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, इतना दूर नीचे जाने के बाद इतना मतलब थोड़ा सा अमाउंट ये जो मिनरल्स है उसको कलेक्ट करके हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक हमारा ये इतना दूर जाने का मेहनत जो है ये बेकार नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये सब जो है कितना ज़्यादा होगा कि कम होगा, ये सब कुछ फिजिकल फैक्टर में आता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि such as demand for the minerals, technological availability or use of capital infrastructure to develop infrastructure or labor and transport cost etc etc। इसमें जैसे कि अगर देखेंगे कि टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हम लोग अगर ज़्यादा खर्चा नहीं कर पा रहे तो ऑटोमेटिक हमारा ये एक्सट्रैक्शन करने में बहुत दिक्कत होगा। लेकिन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो है, मॉडर्न टेक्निक अगर यूज़ करेंगे तो इसको आसानी से हम लोग क्या कर पाएंगे, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। और इसमें एक चीज़ क्या है कि ये लेबर और ये जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जैसे कि लेबर कि इसमें अगर एफिशिएंट लेबर को अगर हम लोग ये नियुक्त नहीं करेंगे, अगर उसमें नहीं लगाएंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा मिनरल एक्सट्रैक्शन जो है अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो हमारा एफिशिएंट लेबर भी चाहिए, जिसके पीछे बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा होगा। प्लस ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी मिनरल्स वगैरह है सिर्फ एक जगह से जहाँ से मिल रहा है उसके आसपास सिर्फ देने से नहीं होगा, बहुत दूर दूर तक पूरा, सपोज हमारा पूरा ये अगर कंट्री के हिसाब से बोलेंगे तो पूरा कंट्री में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी डेवलप होना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो है ट्रेन वगैरह में क्या होता है कि एकदम बहुत दूर दूर तक मिनरल्स वगैरह, कोल बोलिए, डोलोमाइट वगैरह जितना सारा है, ये सब एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर तक ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ये लिया जाता है। ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, उसमें जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी जुड़ जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कैसा है, लेबर कॉस्ट कैसा है, इसमें हमारा टेक्नोलॉजी किस टाइप का यूज़ हो रहा है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि माइनिंग एक्टिविटी कितना अच्छा से हो पाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ माइनिंग। यहाँ पर जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइनिंग। नंबर 1 ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग क्या है कि दिस टाइप ऑफ मिनरल्स आर लोकेटेड जस्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का जस्ट नीचे है, जैसे कि ये वाला जस्ट नीचे ही था। सपोज यहाँ से अर्थ सरफेस पहले था और यहाँ से थोड़ा सा नीचे ये मिनरल्स था। ऑटोमेटिक क्या होगा, उसको हम लोग अर्थ सरफेस को हटा के जल्दी उसको हम लोग पूरा क्या कर सकते हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है ओपन कास्ट माइनिंग। मतलब उसको पूरा हम लोग अर्थ सरफेस को हटाकर उसको मतलब पूरा ओपन करके हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन शाफ्ट माइनिंग क्या होता है कि बहुत नीचे तक, अगर सपोज आज सरफेस से बहुत नीचे तक जाना पड़ रहा है, उसमें क्या होता है हम लोग छोटा सा होल बना के, जैसे कि हमारा कोल वगैरह जो है और या पेट्रोलियम वगैरह ये सब जो जो भी हमारा माइनिंग प्रोसेस है, ये एक शैलो, एक डेप्थ, एक ऐसे ही कुआं टाइप का बना के उसके अंदर से घुस के अंदर जाके ये सब जो भी मिनरल्स वगैरह है उसको कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया शाफ्ट माइनिंग। नेक्स्ट हम लोग और भी डिटेल में देखेंगे मेथड ऑफ माइनिंग। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑकरेंसेस एंड द नेचर ऑफ ओर, माइनिंग इज ऑफ द 2 टाइप्स। नंबर 1 सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग। Surface mining and underground mining. Surface mining, also known as open cast mining. Already we have discussed this portion and this portion also. This underground mining, also known as shaft mining, it involves extracting minerals from great depth by using highly sophisticated method. This method is risky.
क्योंकि इसके सपोज ये वाला जो डायग्राम देखा, छोटा सा एक होल बना के इतना दूर तक नीचे जाके ये मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना और कलेक्शन करना ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। जैसे कि कोल माइंस में हम लोग सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा लेबर वगैरह जो है मर जाते हैं, ये सब के कारण ये शाफ्ट माइनिंग जो है रिस्की बहुत ज़्यादा माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आप लोग इसमें थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हो, और अगर इसका आंसर इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है प्लस ऑनलाइन क्विज वगैरह जो है उसको पाने के लिए आप लोग जस्ट गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं www.egeo, एक ही साथ लिखना है egeo.in, जस्ट कंटिन्यू लिखना है। ये यहाँ पर स्पेस के कमी की वजह से मैं ये 3 लाइन में लिख दिया। तो www.egeo.in ये लिखने से इस एड्रेस में आप लोगों को मिल जाएगा इस प्राइमरी एक्टिविटीज़ चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन, प्लस इसमें लगभग 50 के आसपास इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जिसको आप लोग ऑनलाइन क्विज फॉर्म में आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदेमंद होने वाला है।